before starting, I want two things from you. Try to be honest with your answers, okay? And try to attempt every questions, okay? Okay, ma'am. Yeah. So, shall we proceed? Yes, ma'am. Okay, sure. Introduce yourself. Okay. Good evening, ma'am. My name is Jayanti Gupta. I am from Ayodhya. And in my qualification, I have completed my graduation from IMT University, Meerut. Currently, I am doing MBA with the specialization of HR and marketing. In my experience, I did my internship in a marketing field from my Stay and Explore Private Limited company as a sales executive post. During my internship, I have learned about how to convince our customer and how to give our product knowledge to our customer and how to apply our sales technique to convince them. I did my internship as a HR trainee from a Twist and Tool, and my strength is I'm a self motivated person and I'm a quick learner, and I love to interacting with the new people. My hobbies are I love to traveling, shopping, and listening music, etc. In my achievement, I have participated in many curricular activities during my school and college time, like quiz competition and debate competition, etc. And if you are talking about my skill, I have a good communication skill, and I have a good convincing skill, and I love to motivate people. That's all about me. Thank you, ma'am. Okay, Jayanti, fine. Jayanti, as you told me that you have experience or you have did internship, okay, in HR team, or you have joined something like HR work, okay. So as you know, you can get a very comfortable job with another companies. So Byju's is a very hectic job, and you will get some targets. So why you want to join Byju's? If you want, uh, you can join some other comfortable jobs, right? So why Byju's? because, ma'am, as I told you earlier, I love to interacting with the new people, so I want to enhance my skill in a sales field, because I love to communicate with the maximum new people. So that's why I want to join sales. Okay. But if you will be an HR of any company, in that situation also you will be interacting with many people. No, ma'am. Actually, in HR field, little bit I'm not interested, and whatever I have a skill, so my skill are messaged only for a HR, sales field. So that's why I want to go with sales only. Yeah. Okay, fine. Jayanti, I'll be sharing you a screen. Okay. And you have to read it louder, whatsoever have been written in the screen. Okay. Okay. Yeah. Just a second. Sir, the screen share option is not coming. Okay. It's here, sir. Thank you. Okay. The screen is visible, Jayanti? Yes, ma'am. It is a visual Okay. Fine. Okay. You have to read it from here and read it louder, okay? from company description. No, from the job profile. Okay. So Yeah. job profile is sales associate, and roles and responsibilities are closing inbound leads generated by our marketing team, and growing existing clients accounts, and providing a superior customer experience to our clients. Okay. So explain me this now. Roles and responsibility, whatever you have read right now. Explain me this. Ma'am, in a sales field, we have to generate so many leads, and after getting our leads, so we have to call on their leads and to convince our customer, and also we have to
we should give our product knowledge, relevant information about our product to our customer. And the last point is providing a superior customer experience. And also when we tell about our product to our customers, so also we should take a responsibility as a salesperson to know about the customer satisfaction, how much our customer are satisfied with our product. That is our responsibility. Okay. Jayanti, read the company description now. Okay. And you have to explain me this also, okay? Okay. Yeah. The company description is Fresh Print is a New York based custom and a startup. We find incredible student and give them the working capital, training and support to build the business at their school. Okay. Explain So, me this. ma'am, it's a mean Fresh Print is a New York based custom, and we have to. We should to start some startup in a New York based custom according to New York based custom, and we have to find some incredible student to give them the working capital, and according to that custom we should train that student, and we should provide all the facilities and support to build their business. Okay, fine. Okay, Jayanti. Okay. Tell me something about Byju's. Okay, ma'am, Byju's is a India largest tech company. It's a provide a learning platform to the children, and the founder is Byju Ravindran, and the co-founder is Divya Gokulnath, and established in 2011 in Bangalore. And its total revenue is 2800 crore, and headquarter is in Bangalore, and it is a Jayanti, growing tell me company. five. Okay, fine. I got your point. Okay. Now tell me five skills required for sales. Okay, for selling, we should have a proper good communication skill and convincing skill, and also we have to patience when we talk with our customer, and also we should have a time management skill, and we should have a positive attitude, and we should also have a good listener also. Okay, fine. Jayanti, now I'll be asking you some sales scenario questions. Okay. In that, Okay. you have to think that you are a salesperson and I am your customer. Okay. Okay. And you have to convince me that I should buy that particular product from you. Okay. Okay. Yeah. So, suppose there is a month of May. Okay. So, April or May, and you have to sell me a sweater. How you would convince me that I should buy a sweater in the month of April and May? Okay, ma'am. So, good evening, ma'am. Good evening. Welcome to my shop, ma'am. Mhm. How can I help you, ma'am? Jayanti, I'm here to buy a t-shirt for me, okay, which is of Levi's brand. So can you show me that? Uh, Actually, ma'am, can you please repeat again? Uh, Okay, okay. Jayanti, I'm here to buy a Levi's t-shirt. Okay, it's a Levi's brand, t-shirt. Levi's. Yeah, I'm here to buy a Okay. Levi's t-shirt. Yeah, Okay. and can you show me that? Yeah. Okay. So, ma'am, can I speak in Hindi? Yeah, sure, sure. ओके सो मैम ओके आप यहाँ पे हमारी शॉप पे टी शर्ट लेने आई हो ओके सो Yes. क्या मैं जान सकती हूँ आपका फेवरेट कलर क्या है मुझे व्हाइट कलर का टी-शर्ट चाहिए था.
ओके मैम, ठीक है, आपको मैं टी शर्ट प्रोवाइड करूंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगी। एंड मैम, ये हमारे पास स्वेटर है, इसको आप ले सकते हो। एंड ये बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल होगा। एंड इसका लुक काफी अच्छा है। आप जब इसको वेयर करोगे तो काफी अच्छा लुक आएगा। एंड आल्सो आप इसको जब पहनोगे तो मतलब कि काफी अच्छा आप कंफर्टेबल फील करोगे। एंड आप इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, तो मैं ओके चाहती जयंती, हूँ कि बट आप। आपको आपको तो पता ही है कि ये आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है बाहर। ओके, मई का महीना है ये। ओके, कि ऐसे मंथ में मैं स्वेटर कैसे कैरी कर सकती हूँ? इट्स ओके मैम, आई नो ये, आई मीन समर सीजन चल रहा है, बट मैम हमारे पास अभी जो एडिशन है वो लिमिटेड एडिशन है। एंड हमारे पास अभी ऑफर चल रहा है, तो आप इसको ले सकते हो एज अ अल्टरनेट ऑप्शन के फॉर्म में। एंड मैम, अभी गर्मी का सीजन है, बट 2-3 महीने बाद ऑब्वियसली ठंड आएगी, तो आप ऑब्वियसली न्यू क्लोथ्स लोगे। आई मीन सो मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी एज अ अल्टरनेट ऑप्शन प्रीफर करो, क्योंकि अभी हमारे पास इसका अच्छा प्राइस ऑफर भी है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसको भी लो। ओके, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब स्वेटर का सीजन आएगा ना तभी मुझे ये लेना चाहिए। एज यू नो, हर ईयर पे क्या होता है ना कि फैशन चेंज होता रहता है। ओके, तो फैशन चेंज हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ये स्वेटर बाय कर लेती, फिर मुझे बाद में भी बाय करना पड़ जाए। मैं ये नहीं करना चाहती। नो मैम, फैशन, आई नो मैम, फैशन चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सीजन, बट मैम इसको आप एक एक बार आप इसको तो अपने ऊपर आई मीन वियर करके देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा। आप जब इसे वियर करोगे आपको खुद ये कंफर्टेबल लगेगा। एंड मैम, ये बहुत ज्यादा इतना आई मीन बहुत लाइट वेट का है, इतना हैवी भी नहीं है, तो आप कंफर्टेबली इसको आई मीन रख सकते हो, कहीं भी कैरी भी कर सकते हो। एंड मैम, आई नो मतलब फैशन आई मीन चेंज होता रहता है, बट मैम इसका भी इतना ज्यादा खराब लुक नहीं है कि आप इसे नहीं ले सकते हो। एक बार आप इसे पहन के देखो तो आपको खुद ये अच्छा लगेगा, अच्छा लुक देगा। बट मुझे क्या फायदा मिलेगा इस वक्त ये स्वेटर को खरीदने से? मैम, फायदा आपको ये मिलेगा कि अभी हमारे पास इसका लिमिटेड एडिशन है, एंड ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है। अभी आपको 2-3 मंथ बाद आपको इसकी प्राइस डबल मिलेगी। आप यही सेम क्वालिटी अगर लेने जाओगे तो आपको इसकी प्राइस डबल मिलेगी, जो कि अभी हमारे पास इसका लिमिटेड ही एडिशन है, तो आपको अभी हम ऑफर भी दे रहे हैं। तो आप अगर अभी लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके जयंती, फाइन। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके, सपोज आप एक कॉस्मेटिक शॉप में काम करती हैं। ओके, और मैं आपके पास से लास्ट मंथ एक मेकअप का किट परचेज करके गई थी। ओके, आपने मुझे एक्सपायरी डेट वाला मेकअप का किट दे दिया था। ओके, सो अब मैं आपकी शॉप पर आती हूँ और आपको बताती हूँ कि जयंती देखो, आपने मुझे एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट जो है सेल कर दिया है। तो अब आप मुझे कैसे हैंडल करेंगे ऐसे सिचुएशन में? ओके, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय शॉप मैम। ओके, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट मैम? जयंती, मैं आपके पास आई थी लास्ट मंथ। आपने मुझे एक मेकअप सजेस्ट किया था, एक मेकअप किट सजेस्ट किया था, एंड यू सेड दैट कि ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छा सूट होगा। ओके, मैंने जयंती उसे जैसे अप्लाई किया ना, मेरी पूरी स्किन जो है रिएक्टेड हो गई है। ओके, तो ये तो बहुत गलत है कि आप अपने कस्टमर्स को एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट सेल करती हैं। ओके, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं किसी के साथ? ओके, ओके, ठीक है मैम। पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगी। बाय मिस्टेक ओके, आपको आपके पास डिफेक्टिव पीस चला गया होगा, बट मैम आपको भी पता होगा हम ऐसा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को नहीं देते हैं। बाय मिस्टेक गया होगा, बट मैम कोई बात नहीं, मैं आपका जल्द से जल्द आपका जो भी इन्फेक्शन हुआ है मैं उसको रिकवर करना चाहूंगी। एंड मैम आप आपको मैं अच्छा एक बट जयंती, ट्रीटमेंट आप भी ऐसे दूँ। कैसे कर सकती हैं? आप किसी को भी क्या एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट सेल कर देंगे? आपके यहाँ पे तो कितने कस्टमर्स आते होंगे मेकअप लेने के लिए।
है ना? तो क्या आप बिना देखे ऐसे सेल कर देती हैं? नो मैम, एज आई टोल्ड यू मैम, बाई मिस्टेक वो हो गई होगी, बट मैम ऐसा हम नहीं करते अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि हमें भी पता होता है कि कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि वो आगे भी आएंगे हमारे शॉप पे, तो फिर इससे हमारी शॉप की इमेज खराब होगी। तो मैम बाई मिस्टेक वो चला गया होगा, उसके लिए हम सॉरी हैं। एंड आपको अगर ट्रीटमेंट और आपको आपका हम फिर से अगेन ट्रीटमेंट हम कर देंगे, जिससे कि हम ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपका जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो रिकवर हो जाए। जयंती, अगर नहीं हुआ तो मैं आप पर लीगल केस करना चाहूंगी। नो मैम, ऐसा नहीं होगा कि होगा नहीं, मैं आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगी। एंड मैम, विदाउट आपसे आपका जो भी पेमेंट आप जो भी हुआ है, मैं आपको डिस्काउंट आपका फ्री ट्रीटमेंट करूंगी, जो भी मेरी वजह से आपका इन्फेक्शन जो भी लॉस हुआ है, स्किन इन्फेक्शन। तो मैम आपका मैं अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करूंगी, एंड इसकी गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आप जल्दी ही रिकवर कर लेंगे। बट जयंती, आपने तो एक बार मेरा फेस खराब कर दिया। मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं कि आप मुझे सेकंड टाइम जो भी प्रोडक्ट देंगी उससे मेरा जो फेस है, जो इन्फेक्टेड है, वो ठीक हो जाएगा? मैम बाई मिस्टेक वो हो गई थी, एक मिस्टेक हमसे वो हो गई थी, बट मैम जरूरी नहीं है कि बार बार वो हम मिस्टेक रिपीट करें, तो आई थिंक आपको एक और मौका देना चाहिए हमें। सो आप हम पे एक बार और ट्रस्ट कर सकते हैं। आप आपका हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, और इससे आपका स्किन जल्द से जल्द ही रिकवर हो जाएगा। Okay, fine, Jayanti. Okay. Now I'll be asking you another question. Okay. Suppose I'm a farmer, okay, and I used to wear dhoti. Okay, मैं एक farmer हूँ. Okay, मैं generally धोती कैरी करती हूँ. Okay. In that situation, आपको मुझे सेल करना होगा जीन्स एंड शर्ट. ओके, ओके। सो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. ओके, सो हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? जयंती, एक्चुअली मुझे धोती और कुर्ता देखना था अपने लिए, वो भी कॉटन का. ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, बट मैम आप आपको धोती एंड कुर्ता चाहिए, वेल एंड गुड, बट क्या मैं जान सकती हूँ मैम, आपको ट्रैवल करना, घूमना अच्छा लगता है? जयंती, मैं देखो एक फार्मर हूँ, मैं कहाँ ट्रेवल कर सकती हूँ. ओके, 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 ठीक है। तो अभी आप हमारे पास एक अच्छा सा एक जीन्स एंड शर्ट का एडिशन है, जो कि मैं चाहती हूँ आप इसको भी एक बार देखें। एंड मैं चाहूंगी आप इसको भी लें, क्योंकि आपको ये लेना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है जहां तक मुझे लगती है, तो आई थिंक आप इसको लोगे जब, तो आप अच्छा लुक आएगा। ओके जयंती, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसको कैरी करने में. मैंने हमेशा से, बचपन से ही देखा है, पापा लोगों ने जब हमारे टाइम पे थे तो हमको धोती कैरी कराते थे. अब मैं इस एज में आके 40 अबव होके धोती कैरी कैसे कर सकती हूँ? तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं ये, मतलब ये कैरी करूँ आपका जीन्स. मुझे धोती कैरी करना पसंद है. मैं कंफर्टेबल नहीं रहूंगी. वो जो जीन्स होता है ना, वो काफी चिपका हुआ रहता है ना पैर से, और शर्ट वगैरह भी काफी टाइट टाइट होता है, तो मुझे नहीं ऐसा कुछ लेना आपसे. आप मुझे धोती कुर्ता ही दिखाइए, व्हाइट कलर का और कॉटन का. सर, ओके, मतलब ये अच्छी बात है कि आप कस्टम एंड कल्चर को अपने फॉलो करते हैं, बट क्या होता है मैम कि जरूरी नहीं है कि जो भी हम कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं उसी कल्चर के अकॉर्डिंग ही हम रहें। कुछ चीजें होती हैं कि हमें चेंज करना पड़ता है खुद को, एंड जब हम चेंज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, तो हमें खुद भी अच्छा लगता है, एंड कहीं भी हम पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो भी हमें वो अच्छा ही लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आप इसको ट्राई करें। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, खुद आपको अच्छा लगेगा जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे अच्छे, एंड आपकी पर्सनालिटी जैसी है
तो मुझे लगता है कि आपको ये एक बारी ट्राई करना चाहिए. Okay, fine, Jayanti. Now I'll be asking you some academics questions. Okay. So tell me the volume of cone. Volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Okay. Tell me the Einstein's equation. Einstein equation is E equal to mc square. Okay. Value of pi in decimal. 3.14. So exact 3.14. Yes, ma'am. In decimal 3.14 and in fraction 22 by 7. Yeah, it's okay. Asking that exact 3.14 or it's approximately 3.14. No, ma'am. Um, no, ma'am. I mean, I'm sure 3.14. Okay, fine. Um, Jayanti, now I'll be asking you some BDA questions, okay? Okay, ma'am. Wait, just a second. Okay, tell me another question of academics. 7% of 7. What, ma'am? Tell me 7% of 7. What will be the 7%. 7% of 7? Okay. 7% of 7. 0.49. Okay, fine. Jayanti, I'll be asking you some BDA questions, okay? Okay, ma'am. Yeah. Suppose I'm a parent of a student who is studying in class 5th. Okay. And I don't want him to score much. I want him to go school and just have fun. So in that situation, you have to sell me your Byju's product. Okay. Okay. So, good evening, ma'am. Good evening. How can I help you? Uh, Jayanti, actually, you just called me. I don't know from where are you. Okay. So you have to greet me first that, hello ma'am, how are you? I am from Byju's. Okay, you have to say na that from where you are. Just tell me from where are you? Introduce yourself, Okay. Jayanti. Yeah. Okay. 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 So, okay. Hello, ma'am. Jayanti, see, first of all, okay, I'll be explaining you how to start this. Okay, this is a BDA one. Okay, I'll be asking you some BDA questions of Byju's. Okay, Byju's BDA questions. Okay, in that you have to think that you are a Byju salesperson and I am your customer. Okay, and you have to convince me in every situation that I should buy a Byju's product. Okay, yeah. okay. Uh, yeah. Now suppose I'm a child of class 5th student, a parent of, okay, a parent of class 5th student, okay, and I'm not okay with that he should gain more marks. Okay, I'm okay with everything. Okay, and I want him to enjoy, just go to school and just enjoy. Okay, I'm not putting any pressure on my child. In that situation, you have to sell me a Byju's product. Okay. So, hello, ma'am. Hello. I'm okay. I'm from Byju's. So, can I know? I mean, can I know? I mean, what is your profession? Okay. Jayanti, I'm a homemaker. Okay. Okay. So, Yeah. okay. Okay. So, मैम आपका बच्चा आई नो जैसा कि आपने कहा कि वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है एंड Yes. आप बस उसको आई मीन एवरेज स्टूडेंट आई मीन एवरेज स्कोर आई मीन प्रोवाइड वो लाए तो आप कंफर्टेबल हो आपको ज्यादा उसे आई मीन नहीं फोर्स करना है स्टडी के लिए Yes. राइट बट Yes. मैं चाहती हूँ वो मैम स्कूल ट्यूशंस जाए और अच्छे से एंजॉय करे. Okay. यस मैम बट मैम हम सब जानते हैं कि आज जो भी है आई मीन बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव आई मीन है
हर ही फील्ड में कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा है। तो अभी अभी अगर आपका बच्चा अभी से अगर बेस अपना क्लियर करके चलेगा, अभी से वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके चलेगा, तो इन फ्यूचर उसको आई I मीन कहीं भी किसी भी सेक्टर में कहीं भी उसका अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आई थिंक मैम आपको बाइजू प्रोडक्ट हमारा एक बार यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बच्चा है उसको उसका जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, एंड वो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकता है लंबे टाइम तक। ओके, तो मुझे ये बताइए आपका प्राइस क्या है बायजूस के प्रोडक्ट का? मैम बाइजूस का जो प्राइस है, लाइक हमारे पास मैम डिफरेंट टाइप के टैब हम टैबलेट के फॉर्म में उसमें सारा अपना मटेरियल अपलोड करके हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बच्चा वीडियो लर्निंग के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको वो देखकर वो नॉलेज ले सकता है। एंड इसका जो प्राइस है मैम 1 लाख है। सो एंड मैम इसमें जो थ्री इसके जो टाइप हैं वो थ्री टाइप के हैं, लाइक K12, K3, K9, K12। सो आप जो इसका मैक्सिमम प्राइस है 1 लाख रुपीज है। ओके, बट जयंती मुझे तो ये काफी कॉस्टली लग रहा है। ओके, सो नो इशू मैम। अगर आप इसको लोग बाइजूस प्रोडक्ट हमारा प्रीफर करोगे तो हमारे पास ईएमआई ऑप्शन भी है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपका 0% ईएमआई इंटरेस्ट रेट होगा। सो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वन टाइम पेमेंट ना करके आप मतलब डाउन पेमेंट कर सकते हैं, तो आप मंथली आपका जो भी आप कंफर्टेबल अमाउंट जो भी पे कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं पेमेंट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, ओके जयंती फाइन। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके, suppose as we know that Byju's is costly as comparative to other competitive companies। आप जैसे जानते हैं Byju's जो है वो काफी कॉस्टली है, ओके, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। तो ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? ऐसी सिचुएशन पे आप कस्टमर को कैसे पिच करेंगे? लाइक मैम बाइजू का जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है, मतलब कि हर पेरेंट अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है। अगर वो ट्यूशन वो फिजिकल क्लासेस के लिए अपने बच्चे को भी भेजता है, तो भी उसका इतना तो लिमिटेड अमाउंट वो पे ही करते हैं। एंड हमारा जो बाइजूस का प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट मतलब उतना तो उनसे ज्यादा नहीं है, मतलब इक्वल हो सकता है या फिर उससे कम ही हो सकता है, क्योंकि तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कंफर्टेबल होंगे ये अमाउंट पे करने के लिए। एंड मैम जो हमारा बाइजूस का प्रोडक्ट है उससे क्या है कि बच्चा कहीं भी रह के किसी भी टाइम वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है। एंड हमारे प्रोडक्ट में काफी सारे फीचर भी हैं, लाइक हम एडॉप्टिव लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, ये पर्सनलाइज मोड है, एंड नॉलेज ग्राफ भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हर पेरेंट्स अपने बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है कि उसका बच्चा किस लेवल पे कहाँ पे कैसा वो इम्प्रूव कर रहा है, कितना उसमें क्लैरिटी आ रही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये इसकी इतना कॉस्टली है। ओके, आपको नहीं लगता ऐसा कि बायजूस कॉस्टली है? नो मैम। ओके, ओके फाइन। नाउ सपोज एक चाइल्ड है, ओके, जो कंटिन्यू कर रहा था स्टडीज बायजूस में, ओके, उसका जो पार्ट था, एक सेशन था, ओके, वो बायजूस के साथ ओवर हो चुका है, ओके। अब लेकिन जो क्लाइंट है, ओके, हमारा, वो बायजूस को वापस से फर्दर स्टडीज के लिए अपने बच्चे के लिए बायजूस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, ओके, बिकॉज उस पे साइंस मैथ्स ही पढ़ाया जाता है, लाइक दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, लाइक हिंदी, सोशल। तो आप ऐसी सिचुएशन पे कैसे हैंडल करेंगे कस्टमर को? ओके मैम, ठीक है मैम। इस सिचुएशन पे मैं ये कहना चाहूंगी, लाइक
जो हमारा बायजूस प्रोडक्ट है वो मतलब सारे सब्जेक्ट पे फोकस करता है, लाइक मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, लाइक ये सारे सब्जेक्ट 4 to 6 क्लास के लिए पहले करवाते थे, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सोशल स्टडीज भी इंक्लूड हो चुका है 6 to 12 स्टूडेंट के लिए। तो अभी ये सारे भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं हमारे प्रोडक्ट में, जो कि हमारे प्रोफेशनल पढ़ाते हैं। सो मैम इससे एंड मैम इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, लाइक आई जेई, नीट एंड आईएएस एक्सेट्रा। सो मैम ये सारे फीचर भी हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं। सो आई थिंक ओके जयंती, आई एग्री विद दिस। अगर आपका जो सोशल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो बायजूस ने चलो ऐड करा है, बट हिंदी तो नहीं किया है, अदर सब्जेक्ट्स तो नहीं किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोज मैं एक पेरेंट हूँ, ओके, और मैं आपको बोलती हूँ कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए आपका बायजूस का प्रोडक्ट, क्योंकि जो बाकी बोर्ड्स होते हैं उसमें तो हिंदी हमको पढ़ाना ही है, संस्कृत तो हमको बच्चे को पढ़ाना ही पड़ता है, स्कूल का सब्जेक्ट है ना, हम छोड़ नहीं सकते। तो इतना कॉस्टली आपका जो बायजूस का प्रोडक्ट है, मैं क्यों परचेज करूंगी? आप तो मुझे ये सारे सब्जेक्ट्स देते नहीं है। नो मैम, ऐसा नहीं है कि लाइक हम ये सारे सब्जेक्ट, ठीक है मैम अभी नहीं होगा, हम अभी नहीं ये अवेलेबल करा पाए होंगे, बट मैम अगर बच्चे की नीड है ये एंड बच्चे को अगर जरूरत है तो ऑब्वियसली हमारे वहाँ पे 24/7 हमारे जो प्रोफेशनल होते हैं वो उन्हें गाइड करते रहते हैं। उनका जो भी डाउट होता है वो हर एक डाउट को वो ऑन द स्पॉट वो क्लियर कराते चलते हैं बच्चों बच्चों को। सो मैम आई थिंक ये कोई इशू नहीं है, मतलब अगर बच्चे को जरूरत होगी तो हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप जयंती मुझे ऐसा बोल रही हैं कि आगे चल के आप ये प्रोवाइड करवा देंगी मेरे बच्चे को? यस मैम। Okay, fine, Jayanti. What are your salary expectations from Byju's? Okay, since I am fresher, ma'am, so I just want to grow myself and I want to learn more and more experience. And I'm okay, whatever you mention in your job description. So I'm okay with that. Okay. Uh, Tell me, why should I hire you? Okay, I think I believe I have a good communication as well as good convincing skill, and I prove myself to be great asset for your company. So I think you should hire me. Okay. Anything else you want to add? Why should I hire you? Because we are having ample number of candidates, okay? So what is unique in you? uh, because ma'am I love to interacting with the new people, and my main focus is not to sell our product. So my main focus is the customer know converting into s that satisfaction really motivates me. So I think and I told you earlier I love to motivate people. So I think this is unique in me. Okay. Jayanti, there is a bond of 2 years. Are you willing to sign that? Yes ma'am, I'm okay with that. Okay. What are your backup plans if you got rejected today? Okay, so firstly, I would like to say I'm a confident to clear my interviews. If I am rejected today, so I'm not feeling demotivated. I'll try to best, and I will improve myself where I am lacking, and then I will join again to crack these So, interviews. okay, so you will be waiting for the further 90 days to give interview on Byju's, or you will be joining another company? No, ma'am, I will waiting for only this company. Okay, though you will be wasting your time. No, ma'am, I will not wasting my time. If I am rejected, then I will improve myself where I am lacking. I improve my skills as well. So it is not wasting time for me.
Okay, fine, Jayanti. So our interview part has been over here. Okay, अब हम फीडबैक के पार्ट पे थोड़ा सा बात करेंगे